آرمی چیف کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع، وزیراعظم نے موجودہ میعاد پوری ہونے پر مزید 3 سال کے لیے سپہ سالار مقرر کر دیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نومبر 2022 تک بطور آرمی چیف ذمہ داریاں سر انجام دیں گے۔ وزیراعظم آفس نے ملازمت میں توسیع کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ فیصلہ امن کوششوں اور سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں کیا گیا۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے لندن میں پاکستان مسلم لیگ نون خواتین ونگ کا اجلاس، چیئرمین اعجاز گل سمیت کارکن اور عہدیدار بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ بھارت نے کشمیریوں کے بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈالا، کشمیر کی آزادی تک جدوجہد جاری رکھیں گے، مقررین کا خطاب۔ کلین اینڈ ڈریم مہم پاکستان اوورسیز پاکستانیوں میں مقبولیت اختیار کرنے لگی۔ برمنگھم میں جہلم فورم کا اجلاس، ضلع جہلم کو سرسبز و شاداب اور صاف ستھرا بنانے کے لیے خصوصی مہم شروع کرنے کا اعلان۔ مانچسٹر میں رنگا رنگ فیملی فن ڈے کا اہتمام، لارڈ میئر عابد چوہان، ویلفیئر عطاشی، فضا نیاز کی خصوصی شرکت۔ کہیں مہندی کے سٹالز تو کہیں دیسی کھابوں کی خوشبو، بچوں کی موج مستی کا خاص بندوبست۔ فضا کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھی۔ برسل کے پارک میں مسلم اسلامک کلچر سوسائٹی کے زیر اہتمام رنگا رنگ فیسٹیول، پاکستانی اور ایشیائی کمیونٹی کی بھرپور شرکت، بچوں کے کھیل کود اور دیسی کھابوں کا خصوصی اہتمام۔ اولمپکس میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ بھارت کے خلاف دنیا بھر میں مظاہروں کا سلسلہ جاری، اسپین کے دارالحکومت میڈرڈ میں بھارتی قونصلیٹ کے باہر اوورسیز پاکستانیوں کشمیریوں کا مظاہرہ، بنگالی کمیونٹی نے بھی اظہار یکجہتی کے لیے شرکت کی۔ اٹلی کے شہر بریشیا میں بھی بھارت مخالف نعروں کی گونج۔ پیرس میں وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کے اعزاز میں پاکستانی کمیونٹی کا ظہرانہ، اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ فواد چودھری کا خطاب، اوورسیز پاکستانیوں کا سفارت خانے میں نادرا ڈیسک بنانے کا مطالبہ۔ لندن کے علاقے ساؤتھ ہال میں المصطفیٰ ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام رنگا رنگ کرکٹ گالا، خوبصورت کرکٹ پر شائقین نے دل کھول کر داد دی۔ خواتین اور بچوں کی تفریح کا خصوصی اہتمام، فضا موسیقی کے دھنوں سے گونجتی رہی۔ بریڈفورڈ میں نیزہ بازی کے مقابلوں نے شہریوں کے دل جیت لیے، برطانیہ بھر سے 11 کلبوں کے ماہر گھڑ سوار شریک ہوئے۔ پہلی پوزیشن برمنگھم کے تھنڈر لاسر کلب کے نام رہی، روایتی ڈھول کی تھاپ نے رنگ جما دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پرائم ٹائم بلیٹن میں میں ہوں آپ کے ساتھ یاسر رشید اور میں ہوں آپ کے ساتھ سیدہ اقرا بخاری۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانے بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے ایک اہم اور بڑے فیصلے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 3 سال یعنی فل ٹرم توسیع کر دی۔ توسیع دینے کا فیصلہ کشمیر کی صورتحال، ملک اور خطے میں جنرل باجوہ کی امن کاوشوں کے تناظر میں کیا گیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے انسداد دہشت گردی کی جنگ کو کامیابی سے آگے بڑھایا، آپریشن رد الفساد خیبر آپریشنز کا آغاز کیا، ملک میں امن و امان، بہتر قبائلی علاقہ جات، بلوچستان سی پیک کی ترقی اور کرتارپور راہداری کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ ہمارا دشمن یہ جال ہے کہ ہم کٹ مریں گے، لیکن پاکستان کے ایک ایک انچ کا دفاع اپنے خون سے کریں گے۔ ہمارے گھروں، اسکولوں، عبادت گاہوں، تفریح گاہوں اور ملکی قائدین پہ حملے کیے گئے، مگر سلام ہے پاکستانی قوم اور اس کے محافظوں پر جو اس مشکل وقت میں سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹے رہے۔ قوم کے ان شہیدوں اور غازیوں میں مسلح افواج، رینجر، فرنٹیئر فورس، پولیس اور سویلین سب شامل ہیں۔ اس ملک میں
ایسے باپ ہیں جو اپنے بیٹے نشاور کرنے کو تیار ہیں اس ملک، ایسی مائیں ہیں جو 21 22 سال کے 23 سال کے بچے اس ملک میں نشاور کرنے کو تیار ہیں۔ جب تک اس ملک میں ایسے لوگ جو ملک کو اپنی جان سے اوپر ترجیح دیتے ہیں موجود ہیں تو پاکستان کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ ملک کی ترقی اور مستقل قیام امن کے لیے وزیر اعظم عمران خان نے اہم اور بڑے فیصلے کا اعلان کر دیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں 3 سال توسیع کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم ہاؤس میں جاری اعلامیے کے مطابق جنرل باجوہ کی توسیع کا فیصلہ ملک اور خطے میں جاری امن کاوشوں کے تناظر میں کیا گیا۔ انتیس نومبر 2016 کو جنرل قمر جاوید باجوہ نے سابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف کی سبکدوشی کے بعد بحیثیت 10ویں آرمی چیف ذمہ داریاں سنبھالی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے انسداد دہشت گردی کی جنگ کو کامیابی سے آگے بڑھایا۔ آپریشن رد الفساد خیبر آپریشنز کا آغاز کیا۔ ملک میں امن و امان بہتر، قبائلی علاقہ جات بلوچستان کی ترقی، سی پیک کی ترقی اور کرتارپور راہداری کے لیے کلیدی کردار ادا کیا۔ آرمی چیف نے عالمی سطح پر پاکستان کے بہتر تشخص، دوست ممالک کے ساتھ عسکری سفارتکاری کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ خطے میں بھارتی عزائم، مشرقی سرحد، ورکنگ باؤنڈری اور لائن آف کنٹرول پر جنگی حکمت عملی پر مہارت رکھتے ہیں، جبکہ دیرپا علاقائی افغان مفاہمتی عمل میں بھی کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر آرمی چیف کے فوجی کریئر پر نظر دوڑائی جائے تو جنرل قمر جاوید باجوہ نشان امتیاز ملٹری نے 24 اکتوبر 1980 کو 16 بلوچ ریجیمنٹ کو بری فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اسکول آف انفینٹری اینڈ ٹیکٹکس، کوئٹہ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج، کوئٹہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں بحیثیت انسٹرکٹر خدمات سر انجام دی۔ انفینٹری بریگیڈ میں بریگیڈ میجر اور راولپنڈی کور کے چیف آف سٹاف رہے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے 16 بلوچ ریجیمنٹ، انفینٹری بریگیڈ اور شمالی علاقہ جات فورس کمانڈ کے انفینٹری ڈویژن کی کمان کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے بیرون ملک سبز ہلالی پرچم کو سربلند رکھا اور کانگو میں پاک فوج کے دستے کی قیادت کی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کور کمانڈر راولپنڈی اور GHQ میں انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلویشن بھی رہے۔ ہم نے بہت سی قربانیاں دی ہیں مگر کام ابھی ختم نہیں ہوا۔ یاد رکھیے اس جنگ کے ساتھ ساتھ ہماری دوسری جنگ بھوک، افلاس، غربت اور ناخواندگی کے خلاف بھی اسی تیزی سے جاری رہنی چاہیے۔ ناظرین، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ لائن آف کنٹرول کی حفاظت کرنے والی پاکستان کی سب سے بڑی 10 کور کے کمانڈر رہ چکے ہیں، اسی لیے دنیا انہیں کشمیر پالیسی کے ماہر کے طور پر جانتی ہے۔ جنرل باجوہ کی کشمیر پر پالیسی اور حکمت عملی کیا رہی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ پاکستان اس مسئلے کو کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں حل کرنے کے لیے اپنی سفارتی، اخلاقی، سیاسی حمایت جاری رکھے گا اور دنیا کی کوئی طاقت ہم سے یہ حق چھین نہیں سکتی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، جن کی دانش، دوراندیشی، پیشہ ورانہ تجربے کا دشمن بھی قائل ہے۔ جنرل باجوہ کے 29 نومبر 2016 کو آرمی چیف کا عہدہ سنبھالتے ہی نہ صرف پاکستان کی انڈیا کے حوالے سے پالیسی میں تبدیلی آئی بلکہ لائن آف کنٹرول اور کشمیر پالیسی میں بھی نمایاں مثبت پیش رفت سامنے آئی۔ بھارتی میڈیا نے جنرل قمر جاوید باجوہ کا بطور کشمیر پالیسی کے ماہر کے طور پر تعارف کرایا۔ کشمیر کے لیے آخری حد تک جائیں، آخری خون کے قطرے اور آخری گولی تک کشمیر کے لیے لڑیں گے۔ یہ بیانات جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے کشمیر کی اہمیت اور افادیت سمجھنے کے لیے کافی ہیں۔ میں مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں اور بہنوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو بہادری اور قربانی کی ایک لازوال تاریخ رقم کر رہے ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں ہی بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر ہزاروں مرتبہ اشتعال انگیزی کی، ہر بار بھارتی فوج کو منہ کی کھانی پڑی۔
जावेद बाजवा के यौम दिफा समेत दीगर कौमी दिनों पर तकारीर और बयानात कश्मीर पर गहरी नजर रखने का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान इस मसले को कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल करने के लिए अपनी सफारती, इखलाकी, सियासी हमायत जारी रखेगा और दुनिया की कोई ताकत हमसे ये हक छीन नहीं सकती। 26 फरवरी को भारतीय दरअंदाजी के बाद 27 फरवरी को दिन की रोशनी में पाक फौज और शाहीनों की जानिब से भारतीय सूरमाओं का शिकार सारी दुनिया ने देखा। This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. पूरी दुनिया में जिस तरह आज कश्मीर का मुकदमा लड़ा जा रहा है, इसकी मिसाल पाकिस्तान की हालिया तारीख में नहीं मिलती। आलमी सतह पर नई सफबंदियां हो रही हैं, नए फौजी इत्तेहाद, नए अस्करी ताल्लुकात, नए दिफाई मुआहदे किए जा रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा की पॉलिसी और तजर्बाकारी की वजह से चीन हो या रूस, अमेरिका हो या यूरोप, पाक फौज की अहमियत को सब तस्लीम करते नजर आ रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा ने आर्मी चीफ बनने के कुछ अरसा बाद सहाफियों से मुलाकात के दौरान अपना विजन और पाकिस्तान के इस्तेहकाम में हाल रुकावटों का तस्करा किया, जिसे बाजवा डॉक्ट्राइन का नाम दिया गया। ये बाजवा डॉक्ट्राइन है क्या? आइए आपको समझाते हैं। बाजवा डॉक्ट्राइन पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की वो सोच थी जो उन्होंने सहाफियों से मुलाकात के दौरान जाहिर की। इसमें जनरल बाजवा ने दाखिली मामलात से लेकर आर्मी इश्यूज पर अपना विजन जाहिर किया। बाजवा डॉक्ट्राइन के मुताबिक अफगानिस्तान का मसला अहम था, जिसमें उनका मौक़िफ़ रहा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में किसी किस्म का तौसीई इरादा नहीं रखता। ये डॉक्ट्राइन वाज़े तौर पर इस गलत तासुर की भी नफी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को 5वां सूबा बनाना चाहता है। बाजवा डॉक्ट्राइन में मगरबी बॉर्डर पर मुकम्मल अमन के साथ ईरान और अफगानिस्तान को माजी की तरह अपना इत्तेहादी बनाने की कोशिश करना शामिल था। बाजवा डॉक्ट्राइन पड़ोसियों में नफरत फैलाकर उन्हें अदम इस्तेहकाम से दोचार करने पर यकीन नहीं रखती, बल्कि पाकिस्तान को दुनिया में एक मुस्तहकम और पुरअमन मुल्क के तौर पर पहचाने जाने की ख्वाह है। जनरल बाजवा का नजरिया अमेरिका के साथ ताल्लुकात जारी रखने पर भी इत्तफाक करता है, लेकिन पाकिस्तान मौजूदा सूरत-ए-हाल में पाकिस्तान अफगानिस्तान की सरहदों के अंदर किसी भी जंग और लड़ाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दाखिली सतह पर बाजवा डॉक्ट्राइन की तवज्जो का पहला नुक्ता मुल्क की तहफ़्फ़ुज़ है और ये नजरिया मुल्क को दहशत गर्दी से मुकम्मल तौर पर पाक करने पर यकीन रखता है। जनरल कमर जावेद बाजवा और उनकी टीम का अव्वलीन मकसद अमन और खुशहाल पाकिस्तान है। सियासी क़यादत ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को तौसीह देने के हुकूमती फैसले की तायीद की है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद, फवाद चौधरी और फैसल मावदा ने आर्मी चीफ को तौसीह देने का खैर मकदम किया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था, मकबूजा कश्मीर और अफगानिस्तान की सूरत हाल के तनाजुर में वज़ीर आज़म ने अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल किया। कश्मीर की सूरत हाल है जो रीजन की सिक्योरिटी की सूरत हाल है और जो अफगानिस्तान में हमारी गुफ्तो शुनीद और जो पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाना की जो हमारी जो सूरत हाल है, किस नौयत पर और किस नौबत पर है, इन सारे हालात पर नज़र दौड़ाते हुए वज़ीर आज़म ने अपने आईनी अख्तियार को और अपनी सवालियत को इस्तेमाल करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को उनकी 3 साल की मुद्दत में तौसीह का फैसला किया। वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने कहा, फैसले पर सारी कौम, मालिम इस्लाम और कश्मीरी आवाम खुश हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने आज 3 साल के लिए कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन करके सारी दुनिया में एक पैगाम भेजा है कि जमहूरी हुकूमत और फ़ौज एक पेज पर हैं और कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी के लिए और मोदी के इस जारहाना इक़दाम के ख़िलाफ़ मैं समझता हूँ
इस वक्त कमर जावेद बाजवा साहब की एक्सटेंशन एक बहुत ज़बरदस्त फैसला है और सारी कौम, सारा आलम इस्लाम और कश्मीरी अवाम इस पर खुश हैं। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी का कहना था कि हम तारीख के अहम दौराहे पर खड़े हैं और जनरल बाजवा पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी के तसलसल की अलामत हैं। वज़ीर आबी वसाइल फैसल बावड़ा ने कहा कि मौजूदा मुश्किल सूरत हाल में पाकिस्तान को जनरल कमर जावेद बाजवा की अशद ज़रूरत थी। वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर नईमुल हक ने फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा, मकबूजा कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र आर्मी चीफ की कायदाना सलाहियतें और हुब्बुल वतनी वक्त की अहम ज़रूरत हैं। पूरी कौम एतमाद कर सकती है कि मुसल्लह अफवाज की क़यादत मजबूत हाथों में है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को मुलाजमत में तौसी मिलने पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने मस्बत रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा वो पाक फौज की भरपूर हिमायत करते हैं। मजीद उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने आर्मी चीफ को जो अगले 3 साल के लिए एक्सटेंशन दे दी है, इस हवाले से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से लंदन के अंदर जाने की कोशिश करते हैं कि उनके तासरात क्या हैं, वो इस फैसले को कैसे देखते हैं। जी बताइए, कैसे देखते हैं इस फैसले को? जी जो भी आर्मी कर रही है, मैं उस पर सेटिस्फाई हूँ कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने आज तक जो भी काम किया है बहुत अच्छा किया है और कश्मीर को लेकर जो भी उनके फैसले हैं बहुत मतलब अच्छे जा रहे हैं और उम्मीद है, हमारी दुआएँ हैं कि इंशाल्लाह जो भी इंशाल्लाह आगे होगा वो अच्छा ही होगा। आई थिंक ये बहुत अच्छा इन्होंने किया जो कि हमारी जो कम्बिनेशन है गवर्नमेंट का और जनरल का, आर्मी का, इट्स वेरी नाइस और ऐसा ही चलना चाहिए। और ऑब्वियसली ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारी पाकिस्तान फ़ौज, हम उनके साथ हैं। मेरा ख्याल है अच्छा फैसला है क्योंकि आर्मी चीफ ने इतना अच्छा काम किया है, आर्मी इतना अच्छा काम कर रही है और जो गवर्नमेंट है और आर्मी है वो एक ही पेज पे है। अच्छा फैसला है क्योंकि आर्मी और गवर्नमेंट दोनों एक पेज पे हैं और अभी किसी नए जर्नल का आना, फिर नई पॉलिसी आना, आई थिंक ये अच्छा नहीं था मुल्क के लिए। पाकिस्तान इज़ एट ए वेरी क्रिटिकल स्टेज राइट नाउ, बहुत जियोपॉलिटिकली और अभी जो राइट नाउ मिलिट्री स्टैंड ऑफ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अंडर दीज सर्कमस्टांसेस आई थिंक इट्स बेस्ट फॉर द कंट्री। यहाँ वक्त एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। भारतीय मज़ालिम के खिलाफ कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया वुमेन विंग की जानिब से इजलास मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत चेयरमैन एजाज गुल ने की। पार्टी अहदेदारों के साथ साथ लोगों की एक कसीर तादाद ने शिरकत। मजीद जानते हैं सलीम साबरी की रिपोर्ट में। कश्मीर में होने वाले भारतीय जुल्म सितम के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया की विमेन विंग की जानिब से एक इजलास मुनाकिद किया गया, जिसमें पार्टी ओहदेदारान के साथ साथ लोग भी कसीर तादाद में शरीक हुए। विमेन विंग के सदर नवादिर खान ने कहा कि मोदी ताकत के बलबूते पर कश्मीरियों से उनका हक खुद इरादियत छीनना चाहता है, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होगा। कश्मीरी खून के आखिरी कतरे तक आज़ादी की इस जद्दोजहद को जारी रखेंगे। कश्मीरियों को हमने उनके साथ उनके हाथ मजबूत करने के लिए हम शाना बशाना उनको अपनी वफादारियाँ उनके साथ शो करने के लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इंशाल्लाह हमारा एजेंडा यही है कि कश्मीर के लिए हम अपने सर कटाना भी अपना फ़ख्र महसूस करेंगे। मुस्लिम लीग नून बरतानिया के चेयरमैन एजाज गिल का कहना था कि जिस तरह भारतीय पार्लियामेंट में कश्मीरियों के बुनियादी हुकूक पर डाका डाला गया वो इंतहाई काबिल मुजम्मत है। 370 जो दफा उसने हटाई है ये हम नहीं मानेंगे, ये मोदी तेरी भूल है, तू अपने आप को हिटलर बनाने की कोशिश में हो लेकिन हम तुम्हें बनने नहीं देंगे। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बरतानिया फजलुर रहमान वर्दग ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा को इस मसले पर जरूर मुदाखलत करनी चाहिए। तमाम पाकिस्तानी सियासी पार्टियों को अपने इख्तिलाफात भुलाकर कश्मीर के मसले पर मुत्तहिद होना चाहिए ताकि कश्मीरियों का बुनियादी हक उनको मिल सके। यूनाइटेड नेशंस को मुखातिब करना चाहता हूँ कि प्लीज़ इंटरवीन, इसमें इंटरवीन करें आप और कश्मीर में जो जुल्म हो रहा है मोदी के हाथों उसको स्टॉप करें। बारबेरिक एक्ट वहाँ पर हो रहा है, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है कश्मीर में, दैट नीड्स टू स्टॉप। हम कश्मीरियों भाई बहनों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। कश्मीर में जो लोग सफ़र कर रहे हैं, हम यहाँ ब्रिटेन में उनकी हेल्प कर सकते हैं। हम यहाँ प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं, हमने थर्सडे को भी प्रोटेस्ट किया था
اور اتنی امید نہیں تھی کہ اتنے زیادہ لوگ آئیں گے اور وہاں پہ روڈز بھی بند ہوگی تھی. We removed the 370 article against Kashmir right now and have revoked the right of self-determination from them, and they have tried in United Nations as well that the Kashmiri voice is not heard, and inshallah the Kashmiri voice will be heard because Pakistan is standing with them and we are going to stand with our brothers until we give them the right that they deserve. Since 47 their voices will be heard and their silences will no longer be exceeding. Now we will be working towards a prosperous Kashmir. اجلاس سے میاں مسرور، سعید احمد، فریاد بخاری اور دیگر نے بھی خطاب کیا. برمنگھم میں جہلم فورم کا اہم اجلاس ہوا جس میں برطانیہ بھر سے لوگ شریک ہوئے اور اپنے آبائی ضلع میں کلین اینڈ گرین مہم کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ مقامی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کیا جائے گا جس کے تمام اخراجات جہلم فورم ادا کرے گا. عابد قاسمی کی یہ رپورٹ. پاکستان کے ضلع جہلم سے تعلق رکھنے والے بے شمار افراد برطانیہ بھر میں آباد ہیں جن کو ایک پلیٹ فارم پر لانے کے لیے جہلم فورم کا قیام عمل میں لایا گیا تھا. فورم کی برانچیں برطانیہ بھر میں قائم کی گئیں. پچھلے اجلاس میں جہلم شہر کی خوبصورتی کو بڑھانے کی مناسبت سے کلین اینڈ گرین جہلم کے نام سے مہم کا آغاز کیا گیا تھا جس کو عملی شکل دینے کے لیے برمنگھم کے کمیونٹی ہال میں برطانیہ بھر کی برانچز کے صدور اور جنرل سیکرٹریز کا اجلاس بلوایا گیا. اس دوران جہلم فورم برمنگھم کے صدر نعمان سعید سمیت برطانیہ کے دیگر شہروں سے آئے ہوئے عہدیداروں نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کا مقصد ہے کہ وہ اپنے آبائی علاقوں میں موجود غریب اور نادار لوگوں کی امداد کے ساتھ ساتھ جہلم شہر کو خوبصورت بنانے کے لیے کلین اینڈ گرین مہم کا آغاز کریں. Purpose of this meeting today is to actually the awareness for all the people who are actually living in UK from Jhelum base, and we have organized to participate in this in order to develop the city of Jhelum. Basically, it's great to see that we're all getting together again in Birmingham, which is a centre point in England, and we've all showed our commitment by coming here, and hopefully we'll have some progress to report to you soon. General secretaries اور صدرز جو پورے UK سے جن کا تعلق ہے ان کو ادھر برمنگھم میں ہم نے دعوت دی ہے اور ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہم ضلع جہلم کے اندر صفائی ستھرائی، تعلیم اور فلاح و بہبود کے اوپر کیسے کام کر سکتے ہیں. ہمارا مقصد یہی ہے کہ جہلم کے اندر جو کچھ ہم بہتری کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم اکٹھے ہوئے ہیں. We are pleased to be here in Birmingham today in our second national meeting. یہ بہت اچھا فورم ہے. میں چاہوں گا کہ تمام جہلم کے لوگ اس میں شامل ہوں. بیسک مقصد یہ ہے کہ لائحہ عمل تیار کیا جائے کہ وہ کون سے پروجیکٹس ہیں جو ہم جہلم میں رن کریں. کلین اینڈ ٹائڈی کی ہم نے بات کی تھی وہ کرنی ہے. دوسری جو ہے نا چیریٹی کے کام یا ویلفیئر کے جو کام ہیں اس کے اوپر آج ڈسکس ہوگی. وہ مسائل ہمارے یہاں کے UK میں رہنے والے لوگوں کے پاکستان سے ریلیٹڈ اسپیشلی جہلم سے وہ جہلم کے لوگ ہماری مدد کریں گے اور جو جہلم ہمارے لوگ ہیں جن کے وہاں مسائل ہیں ہم یہاں رہنے والے ہیں ہم ان کی وہاں مدد کر سکیں. کلین اینڈ گرین جہلم کے لیے ہم پروجیکٹ چلا رہے ہیں جس کو ہم آگے لے کے جائیں گے. اجلاس میں کلین اینڈ گرین مہم کے ساتھ ساتھ غریب اور نادار بچوں کی فری ایجوکیشن پر بھی فوری کام کرنے کا فیصلہ کیا گیا. اس مقصد کے لیے 3 رکنی وفد جلد پاکستان کا دورہ کر کے کام کا آغاز کرے گا. عابد قاسمی 92 نیوز برمنگھم. مانچسٹر میں فیملی فن ڈے کا اہتمام کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں مرد و خواتین اور بچوں نے شرکت کی. تفصیلات راجہ باجد کی رپورٹ میں. مانچسٹر میں عید ملن جشن آزادی اور کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے قادریہ جلانیہ اسلامک سینٹر مصطفیہ شریف اور اردو گلوبل نے فیملی فنڈے کا اہتمام کیا جس میں بڑی تعداد میں مرد و خواتین اور بچوں نے شرکت کی. فنڈے میں بچوں کے لیے باؤنسی کیسل، فیس پینٹنگ، کھلونوں اور مہندی کے سٹالز لگائے گئے جہاں باربیکیو اور پاکستانی ملبوسات کے سٹالز بھی لگائے گئے تھے جس میں خواتین نے خوب دلچسپی لی. فیملی فنڈے کی خاص بات فری آئی کیمپ تھا جس میں چیک اپ کے ساتھ مفت اینکیں بھی دی گئیں. 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے آئی آپٹیشن کا کہنا تھا اس طرح کے کیمپ لگانے کا مقصد لوگوں میں آئی ٹیسٹ کروانے کا شعور بیدار کرنا ہے. فری آئی ٹیسٹ کیے ہیں، فری گلاسز دیے ہیں، سب کو اویئرنیس کیا ہے کہ آنکھوں کی کتنی آئی ٹیسٹ کی ضرورت ہے. ہمارے کلچر میں کبھی کبھی ہم آئی ٹیسٹ نہیں کراتے بٹ ڈائبٹیز کی وجہ سے، بلڈ پریشر کی وجہ سے آنکھوں کے پیچھے کمزوری آ جاتی ہے اور کئی لوگ ہم اس کو چیکنگ نہیں کراتے. بٹ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم سب تک پہنچ سکیں اور سب کو اویئرنیس دے سکیں کہ یہ کتنا ضروری ہے. فنڈے کے مہمان خصوصی لارڈ میئر مانچسٹر عابد چوہان، ویلفیئر اتاشی کونسلیٹ جنرل مانچسٹر فضا نیازی سمیت دیگر کا کہنا تھا کہ آج کے دن انہیں اپنے مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کو نہیں بھولنا چاہیے اور انہیں ہر فورم پر ان کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. اس قسم کے پروگرام سے ہوتا ہے کہ ہمیں تمام کمیونٹی کے اندر ہم آنگی
प्यार और मोहब्बत पैदा करने का एक ज़रिया होता है। मैं चाहता हूँ कि इस किस्म के प्रोग्राम होने चाहिए ताकि इस वक्त हमें ज़रूरत है कि तमाम जो कीमतीज़ हैं, मास्टर की बड़ी प्राउड हिस्ट्री है कि मास्टर जो है वो डाइवर्सिटी, मल्टी कल्चर, मल्टी एथनिकसिटी और जो अंडरस्टैंडिंग और फ्रेंडशिप प्रमोट करता है, तो इसमें हमें मदद मिलेगी और इसके प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। जश्न आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान की याद ताज़ा रखने के लिए बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो कश्मीर के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि इस तरह के इवेंट्स में पाकिस्तान के बारे में और इस तरह ही कश्मीरी बहन भाइयों के अक़ीदत के बारे में बात करें। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਸ਼ਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕੋ ਇਨਸਾਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ। Whatever is happening in Kashmir is not good. Indian government is killing Kashmiri people and we want peace in Kashmir. जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। अब वक्त आ गया है, कश्मीरियों का मसला हल होने वाला है। अब इंशाल्लाह मकबूजा कश्मीर को आज़ादी मिलने वाली है इंशाल्लाह। चाचा क्रिकेट से सारी दुनिया प्यार करती है, चाचा क्रिकेट भी सारी दुनिया से प्यार करता है, लेकिन जिस आदमी से मुझे ज़िंदगी में नफ़रत हुई है उसका नाम नरेंद्र मोदी है, जिसने 1.5 अरब आवाम को मौत के किनारे ला खड़ा किया है। और इंशाल्लाह वो वक्त जल्दी आने वाला है जब इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा। कम्युनिटी में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाले अफराद को अवार्ड्स और सर्टिफिकेट भी दिए गए। आखिर में कादरिया जलानिया इस्लामिक सेंटर के चेयरमैन साहबजादा अहमद वकार बेग ने फैमिली फंड डे के तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया और दुआ कराई गई। कैमरा टीम के साथ राजा वाजिद, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। लंदन के इलाके साउथ हॉल में फलाही तंजीम अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम क्रिकेट गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी हाई कमीशन, यूके मीडिया, अल मुस्तफ़ा 11 और हौंसला जामिया मस्जिद की क्रिकेट टीमों ने हिस्सा लिया। मारूफ टीवी एंकर सुहेल वड़ाइच, जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट कासिम अली शाह, एंकर फैसल अजीज़ खान और दीगर मारूफ शख्सियात भी क्रिकेट गाला की रौनकों से लुत्फ़अंदोज़ हुई। मज़ीद तफ़सीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान की इस रिपोर्ट में। लंदन के इलाके साउथ हॉल में अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से कम्युनिटी को सेहतमंदाना तफरीह पेश करने के लिए खूबसूरत क्रिकेट गाला का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान हाई कमीशन 11 और मीडिया 11 समेत हौंसला मस्जिद 11 ने भी भरपूर शिरकत की। क्रिकेट गाला में 4 टीमों की शमूलियत से शायकीन क्रिकेट को खूबसूरत क्रिकेट देखने को मिली। शायकीन ने खूबसूरत खेल पर खिलाड़ियों को भरपूर दाद दी। शानदार कमेंट्री ने खिलाड़ियों का जोश बढ़ाए रखा। बहुत ही खूबसूरत सा कैच, ये बहुत खूबसूरत कैच था रकी जी, मैं आपको बताता हूँ। इस मौके पर बच्चों और फैमिलीज की तफरीह के लिए बाउंसिंग कैसल और खाने पीने के स्टॉल भी लगाए गए थे, जहां बच्चों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। इवेंट में मौसीकी की धुनों ने भी शायकीन के दिल गरमाए रखे। मैच के दौरान गुलकार इब्रारुल हक के पंजाबी गीत भी गूंजते रहे। शायकीन ने इस मौके पर सेहतमंद तफरीह फराहम करने पर अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद को मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि ऐसी तफरीहात का होना दियार गैर में किसी नेमत से कम नहीं, क्योंकि खेलों का माहौल अगली नस्ल में दिलचस्पी का बायस बन रहा है। काफ़ी यहाँ पे फैमिलीज आई हुई हैं और सब लोग इंजॉय कर रहे हैं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट ने एक अच्छा मौका दिया है और ये भी क्योंकि कम्युनिटी के लिए है, आपको हेल्दी होना चाहिए। माशाल्लाह ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए ताकि स्पेशली यंगस्ट बच्चों को हम इंकरेज करें कि ऐसे फंक्शन में आएँ और ताकि कम्युनिटी का रौनक हो, एक दूसरे को मिले। आज पाकिस्तान हाई कमीशन, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट और हमारे हौसला जामिया मस्जिद से टीमें आई हैं, तो यकीनन एक अच्छा मैसेज, मुस्बत मैसेज जो है वो देना मकसद है। हमारा ये मोटो रहा है कि हम खेल को प्रमोट करना चाहें, हेल्थ को हम प्रमोट करते हैं और इसमें हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये मकसद था कि इसको टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ कराया जाए। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ईद का समय है, एक मेले का समय है कि हम कम्युनिटी डिफरेंट जो तबकात के लोग हैं वो सारे इकट्ठे हुए हैं एज ए कम्युनिटी की शक्ल में, और बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, बड़े भी इंजॉय कर रहे हैं। क्रिकेट जो है ना एक मीडियम है कम्युनिटी को इकट्ठा करने का। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अब्दुल रज़ाक साजिद ने इस मौके पर अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि वो समाजी सरगर्मियों के साथ साथ खेलों के मैदान में भी ऐसे मौके तलाश कर रहे थे जिसमें कम्युनिटी को इकट्ठा किया जा सके। इस तरह के इवेंट्स का तसलसल जारी रहेगा। हमारा मेन सोच ये थी कि
यहाँ के लोगों में, नौजवानों में मुस्लिम सोच को परवान चलाया जाए। ये खेल खेलने से दिमाग बंदा वसी होता है, सेहत बेहतर होती है, और यहाँ के बच्चे जो इन्वॉल्व हुए हैं इस गेम के अंदर, उससे ये मैं समझता हूँ हमारी कम्युनिटी के अंदर एक अवेयरनेस पैदा होगी। मारूफ टीवी एंकर सोहेल वड़ाइच और जस्टिस कासिम अली शाह ने भी समाजी कामों में हिस्सा लेने वाली तंजीमों का खेलों के जरिए कम्युनिटी को जोड़ने जैसे इकदामात को सराहा। लश ग्रीन ग्रास है, मौसम की ठंडी हवाएं चल रही हैं और लोग खुश हैं, पाकिस्तानी खुश हैं, नौजवान खुश हैं, खेल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें इंतहाई खुशगवार हैं, क्योंकि जब लोग खेलते हैं, जब हंसते हैं, तो उससे लोगों की उम्र बढ़ती है, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ती है, तल्लुक़ बढ़ता है। ये सिर्फ सोशल इवेंट नहीं है, स्पोर्ट्स इवेंट भी है, कल्चरल इवेंट भी। ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत है। अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट मैं समझता हूँ कि जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें इस मामले में ज़रूर बाजी ले गई, आगे चली गई, और ये अच्छा मौका है। आखिर में खिलाड़ियों और मुंतजमीन में अवार्ड शील्ड्स तकसीम किए गए, मेहमानों को गुलदस्ते पेश किए गए, जबकि शुरा ने तस्वीर बनाकर इवेंट को कैमरे की आंख में कैद किया। अल मुस्तफ़ा ट्रस्ट के ज़रिए तमाम होने वाले इस क्रिकेट गाला का मकसद लोगों को चैरिटी वर्क के साथ साथ सेहतमंदाना तफरी करना भी था। साथी रिपोर्टर वसीम काज़मी के साथ गुलाम सैनवान, 92 न्यूज़, लंदन। मशरकी लंदन में फलाही तंजीम सर्च पीस फाउंडेशन ने सकाफती हमाहंगी के फ़रोग के लिए क्रिकेट फेस्टिवल सजाया, जिसमें मेयर वॉल्थम फॉरेस्ट, दर्जनों काउंसलर्स, मेट्रोपॉलिटन पुलिस और दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने खूबसूरत खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों को दिल खोल कर दाद दी। जोश और वलवले से भरपूर इवेंट की तफसीलात जानते हैं सलीम साबरी की रिपोर्ट में। लंदन की पहली कल्चरल बारो वाल्थम फॉरेस्ट और सर्च पीस फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम मशरकी लंदन वाल्थम स्टोर लो हॉल स्पोर्ट्स ग्राउंड में सजा क्रिकेट फेस्टिवल। वाल्थम फॉरेस्ट क्रिकेट फेस्टिवल 2019 में खिलाड़ियों समेत क्रिकेट के दिलदादा सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और खूबसूरत क्रिकेट का लुत्फ उठाया। क्रिकेट फेस्टिवल 2019 में 8 टीमों के माबैन दोस्ताना मुकाबला रहा। काउंसलर, खवातीन और बच्चे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 होम कमिंग को इंजॉय करते नजर आए। NLCL के फाउंडर साजिद पटेल और राजा ज़ीशान ने अवार्ड्स की निज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए, जबकि काउंसलर विकी खवातीन की नुमाइंदगी में पेश नजर आईं। काउंसलर लियाकत अली, शौकत अली और पुलिस अफसरान ने न सिर्फ शील्ड्स तकसीम की बल्कि अपने ख्यालात का इजहार भी किया। इस मौके पर 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए शुरका ने बैनुल सकाफ़ती क्रिकेट फेस्टिवल को शानदार करार देते हुए मुस्तकबिल में भी ऐसे इवेंट कराने पर जोर दिया। यहाँ पर आप देख रहे हैं सभी कम्युनिटीज़ हैं, एंड ऑल थैंक्स टू वाल्थम फॉरेस्ट काउंसिल एंड सर्च पीस फाउंडेशन, जिसमें चौधरी अफसर साहब बड़ा काम कर रहे हैं। बहुत प्यारा मौसम है और बच्चे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी के लोग, जैसे कि ये वाल्थम स्टोर एक बेहतरीन बारो है, यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटी के लोग रहते हैं। Today we are gathered here at Low Hall Walthamstow ground for Search Peace Foundation, which is a fantastically organized the games being played between youngsters, elders, counsellors, and it's great to see the families here. Here today in Walthamstow, in my constituency, Markhouse Ward, for this great cricket tournament. As you can see, we've had teams from across the borough participate in cricket. It's an absolutely brilliant initiative by Search for Peace Foundation, in partnership with Waltham Forest Council, bringing the community together by the use of cricket. We've seen recently the England World Cup victory, and it's really inspired people. मैचेस हो रहे हैं, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी कम्युनिटी मिक्स कम्युनिटी इकट्ठी हुई है, एंड आई थिंक जो इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है चोई साहब ने सर्च पीस फाउंडेशन के नाम से, इन्होंने अच्छा किया है। वाल्थम फॉरेस्ट के ज़रिए तमाम आज जो क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है, ये बहुत ही खुश आइंद है और नौजवान नस्ल के लिए ये एक बहुत अच्छी, इनकी सेहत के लिए, इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको ये बरूए कार लाते हुए इस तरह के टूर्नामेंट होने चाहिए। आखिर में शानदार खेल पेश करने वाले खिलाड़ियों और मुंतज़मीन को अवार्ड से नवाजा गया। क्रिकेट फेस्टिवल में मेयर क्रिस्टोफर रॉबिन्स, पुलिस स्पेशल ऑफिसर महमद हसन, ECB ग्रोथ मैनेजर मोहम्मद आरिफ, काउंसलर लियाकत अली, चौधरी शौकत अली, साजिद पटेल, काउंसलर जोहर खान, काउंसलर आसिम महमूद, काउंसलर शेरन वाल्टर डोन, इसहाक मसीह और कम्युनिटी रहनुमाओं की कसीर तादाद ने शिरकत की। सलीम साबरी, 92 न्यूज़, लंदन। मिनी पाकिस्तान ब्रेडफोर्ड में नेज़ाबाजी का शानदार मुकाबला हुआ, जिसमें बरतानिया भर से 11 क्लब्स ने शिरकत की और दर्जनों घुड़सवारों ने हिस्सा लेकर शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। घुड़सवारों की महारत देखकर शायकीन दाद दिए बगैर ना रह सके। तफसीलात देखते हैं वक़ार बाबर मुगल की रिपोर्ट।
मिनी पाकिस्तान ब्रैडफोर्ड में नेजाबाजी का शानदार मुकाबला हुआ, जिसमें पहली पोजीशन खंडोर लांसर क्लब बर्मिंघम जबकि दूसरी और तीसरी पोजीशन पंजाब लांसर बर्मिंघम और चेयरमैन क्लब ब्रैडफोर्ड ने हासिल की। इस मुकाबले में बरतानिया भर से 11 क्लबों ने हिस्सा लिया, जिसमें पोठवार हैदरी, चेयरमैन नेजाबाजी, अल सदात, पंजाब लांसर, टीम रॉयल, खंडोर लांसर, गुज्जर नेजाबाजी, बैडफोर्डशायर और ब्लैक बार्न नेजाबाजी क्लब शामिल थे। शायकीन नेज़ाबाजी बड़ी तादाद में शरीक हुए। उनका कहना था कि ब्रैडफोर्ड की तारीख में पहली मर्तबा नेज़ाबाजी का मुकाबला हुआ, जिसे उन्होंने बहुत पसंद किया और इस ख्वाहिश का इजहार भी किया कि आइंदा भी इस तरह के सकाफती प्रोग्राम होने चाहिए ताकि हमारी नौजवान नस्ल को अपनी सकाफत से रोशनास कराया जा सके। First time ever held in Bradford, so it's a big thing for the community as well. We've gathered here today, and it's pretty clear that it's an absolute fantastic event that's been organised by the tent pegging institution. And for the first time in Bradford, an event like this has been sought about. And I think it's absolutely fantastic to see men, women come here and enjoy themselves. हमें बहुत खुशी हुई है, पहली दफ़ा ब्रैडफोर्ड में प्रोग्राम हुआ है नेज़ाबाजी का। ये पहली दफ़ा है, मैं भी इधर देख रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत लोग जमा हैं। बड़े अरसे तो बाद नेज़ाबाजी कौन सी तकी आई ब्रैडफोर्ड तकी दा नेज़ाबाजी दा बड़ा मज़ा आया ते इन लोगों अपनी सकाफत की जिंदा रखे आ। बहुत मेहरबानी जनाब, पहले तुसा ने आके सारे कोले तुसा तारफ करवाने में आज जनाब बहुत ही मज़ा आ रहा। सारे जवाना अपनी सकाफत को जिंदा रखे है, मैं इस बात इन्हां दा बहुत मशकूर हाँ और बहुत ममनून हाँ। मुकाबला सुबह 11 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक जारी रहा। दियारे गैर में इस तरह के सकाफती खेल जहाँ सकाफत को प्रमोट करते हैं, वही मेल मिलाप का भी अहम जरिया है। वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। स्पेन के दारहुकूमत मैड्रिड में भारतीय सफारत खाने के सामने मुजाहरा हुआ, जिसमें स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में मुकीम कश्मीरी, पाकिस्तानी और बंगाली कम्युनिटीज़ ने शिरकत की। इस मौके पर फजा भारत मुखालिफ नारों से गूंजती रही। शाहिद अहमद शाहिद की रिपोर्ट। स्पेन का दारुल हुकूमत मैड्रिड भी भारत मुखालिफ नारों से गूंज उठा। मैड्रिड में भारतीय सफारत खाने के बाहर कश्मीर के हक में मुजाहरा हुआ, जिसमें ओवरसीज कश्मीरी, पाकिस्तानी और बंगाली शरीक हुए। मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदे भी मुजाहरे का हिस्सा बने। इस मौका पर फजा भारत, दहशतगर्द और आज़ादी के नारों से गूंजती रही। मुजाहिरीन ने प्ले कार्ड्स और बैनर उठा रखे थे, जिन पर मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि भारत ने कश्मीरियों पर मजालिम की इंतहा कर दी है। मकबूजा कश्मीर का राब्ता दुनिया से मुनक़ता कर दिया गया है। भारत कश्मीरियों की बड़े पैमाने पर नस्ल कशी कर रहा है और इस वक्त कश्मीरियों को एक बड़े अलमिए का सामना है। अपना प्रोटेस्ट इंडियन एम्बेसी मैड्रिड के सामने कर रहे हैं और ये मेरा इंडिया की एम्बेसी के अंदर बैठने वालों को ये पैगाम है कि जब तक आप हमारे इनोसेंट लोगों के ऊपर मकबूजा कश्मीर के अंदर जुल्म बंद नहीं करेंगे, इस तरह के एहतजाज हर वीक को होंगे। हम लोग यहाँ मैड्रिड से इकट्ठे हुए हैं, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी है, बांग्लादेश की बहुत ज़्यादा कम्युनिटी है और बार्सिलोना से, तारागोना से, वलेंसिया सब लोग आए हैं कि अपने कश्मीरी भाइयों का साथ दे सकें, उनको इस टेररिज्म से छुड़ा सकें, मोदी के चुंगल से छुड़ा सकें जो नाजायज़ काम कर रहा है। यहाँ जमा हुए हैं, हमारा मकसद है कि कश्मीर में जो भी बर्बरियत जारी है हम मजम्मत करते हैं उसकी। पूरी दुनिया में इस वक्त एक ही आवाज़ गूंज रही है कि कश्मीर लहू लहान है और हम मुतालबा करते हैं यूनाइटेड नेशन से और पूरी उम्मत मुसलमान से कि अब वक्त आ गया है कि हम इसको जहाद का नाम दें और जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता ये जंग जारी रहेगी। 15 दिन हो गए उनको कर्फ्यू लगाया हुआ, उठाए, बच्चों के लिए दूध नहीं है, मेडिसिन नहीं है, तो उनको मैसेज है कि उठा लें अपना कर्फ्यू ताकि उनको मेडिसिन मिल सके। मुजाहिरीन का कहना था भारतीय मुजालिम के खिलाफ और कश्मीर की आज़ादी के लिए दुनिया भर में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानी पुरअमन जद्दोजहद जारी रखेंगे। मकबूजा कश्मीर में भारत के गैर आइनी, गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ मुजाहरों का सिलसिला यूरोप भर में जारी है। कश्मीर में होने वाले भारतीय मजालिम के खिलाफ दुनिया चीख उठी है। वो जहां इंडिया को मजालिम बंद करने का कह रही है, वहीं कश्मीरियों की आज़ादी तक ये जद्दोजहद जारी रखने का आज़म भी लिए हुए है। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, मैड्रिड, स्पेन।
اٹلی کے شہر بریشیا میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا جس میں ہزاروں افراد شریک ہوئے. ریلی کا آغاز اسلامک سینٹر سے ہوا جو 2 کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے بریشیا پارک میں اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں پاکستانی کشمیری سکھ اطالوی اور عرب کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد شریک ہوئے. اس موقع پر شرکاء نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے اور وہاں عائد کرفیو کی شدید مذمت کرتے ہوئے بھارتی حکومت کے خلاف نعرے بازی کی. مقررین نے بھارتی حکومت کے اقدام کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے کہا کہ مودی کی ہندو توا پالیسی کے باعث بھارت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. انہوں نے اقوام عالم سے مطالبہ کیا کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم روکنے اور کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے. پرائم ٹائم بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے بابسوخ ویب سائٹ 92newshd.tv. تو دیکھتے رہیے 92 نیوز.